Welcome to our students. Hello, how are you? And today we are discussing about our fundamental of anatomy, physiology and kinesiology. And today our topic is first three systems. We will discussing about first skeletal systems, respiratory systems and circulatory system. Now here first skeletal system. Skeletal systems make different by the help of different bones and different joints. कई सारे make joints and bones then formulate the skeletal system in our body. And skeletal systems combination of various bones. And total we have know about that in our skeletal systems total bone our 206. And skeletal systems divided into two parts. First, axial systems, then appendicular systems. In axial systems, 80 bones. In appendicular, 126 bones. In appendicular, 126 bones. In appendicular, 126 bones. So here skeletal system divided in two parts. In axial skeletal have our combination between the combination of our skull, our spine, our ribs area. So that's the reason make our axial systems, axial skeletal systems, axial skeletal system. Make axial skeletal systems. And now I have a skull have a 28 bones and whole complete our skulls have 28 bones, one sternum, 24 total ribs, one hyoid bone. Hyoid bone means in one hyoid bone in our neck on that part, hyoid bone, and vertebral column. 26 vertebral column in adult and 33 vertebral column in child. when child बर्थ होता है जब चाइल्ड का तो उसमें 33 वर्टिब्रा कॉलम होते हैं. नाउ अपेंडिकुलर में टू टाइप से डिवाइडेड है. इसमें अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स. इन अपर लिम्स में क्या होता है? इन अपर लिम्स 64 बोन्स. इन लोअर लिम्स 62 bones. That is upper skeletal system divided in different parts and different function of our skeletal systems. First function, provide support, provide protection. Bone systems serve for the attachment of muscles and bone system serve as attachment of muscles means देखा होगा जहाँ बोन से जब मसल्स कनेक्ट होती है तो उस बीच में एक और पार्ट कनेक्ट होता है उसे बोलते हैं लिगामेंट. सो जो लिगामेंट मसल से बोन में कनेक्ट होता है सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड लिगामेंट. एंड टेंडन कनेक्ट बिटवीन टू बोन्स एट ए जॉइंट पर जब दो बोन्स कनेक्ट करता है तो वो टेंडन यूज होता है. और जब मसल्स बोन से कनेक्ट होती है सो वहाँ पर जो यूज होता है वो दैट इज ए लिगामेंट. सो बोनी सिस्टम सर्व फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल्स. सो बोनी सिस्टम क्या कर रहा है? ये मसल से भी अटैचमेंट कर रहा है. देन बोनी सिस्टम्स गिव ए शेप टू द बॉडी. शेप टू द बॉडी मीन्स ये our skeletal system give our body structure, body structures, vital role, shape of the body and responsible for the long and short structures. Act as a lever. Skeletal systems act as a lever के रूप में भी वर्क करता है skeletal systems. Passive instruments of locomotion. Bones are passive instruments of locomotion or movements. In fact, these enable us to move. Passive instrument of locomotion means जो मूवमेंट्स में
जब भी कोई एनी मूवमेंट्स वी विल डूइंग, सो बाय द हेल्प ऑफ बोन एंड मसल्स वी परफॉर्म एनी एक्टिविटी और एनी मूवमेंट. विदाउट हेल्प ऑफ बोन वी नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी एंड एनी मूवमेंट्स, बिकॉज ऑन दैट पोजिशन bones perform as a लीवर, वर्क एज ए लीवर का वर्क करता है यहाँ पर. अब यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है बोन्स को डिफरेंट टाइप्स में. लॉन्ग बोन्स में क्या होती है? लॉन्ग बोन्स हमेशा लीवर का वर्क करती है. लॉन्ग बोन्स वर्क फॉर लीवर्स. इसमें लॉन्ग बोन्स में कौन कौन से जाएंगी? हमारा फीमर मसल्स, ह्यूमरस मसल्स, रेडियस मसल्स, अल्ना बोन, रेडियल बोन, ह्यूमरस बोन एंड फीमर बोन, ठीक है, टिबिया बोन, फिबुला बोन, ये ऑल बोन्स कम्स अंडर अवर लॉन्ग बोन. एंड शॉर्ट बोन गिव ए स्ट्रेंथ. ये क्या करती है? स्ट्रेंथ का काम करती हैं. ये वेट बेयरिंग रहती है. सो इसलिए जो मेटाकार्पल्स हैं हमारे, मेटाकार्पल्स और कार्पल्स इन लेग and in our hand, वो metatarsal and tarsal in leg and metacarpal and carpal in hands. So that is a short bone, and short bone work as a weight bearing है. flat bone जैसे हमारा sternum region, flat bone sternum region. अगर ribs ये flat bone में आती है. then scapula also part of ये प्रोटेक्शन. फ्लैट बोन क्या करते हैं? फ्लैट रहती है तो वो प्रोटेक्शन को, जो वाइटल, जो हमारे वाइटल ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्शन का काम करते हैं. सो फ्लैट बोन लाइक ए स्टेरनम, स्कैपुला, रिब्स प्रोटेक्ट अवर इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स. नाउ इरेगुलर बोन. vertebra is good example of these bones. So irregular bones are the vertebral columns. Like means इनका कोई रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है. जैसे वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, सर्वाइकल रीजन में डिफरेंट शेप रहता है, थोरेसिक रीजन में डिफरेंट शेप आ जाता है, देन लंबर रीजन में डिफरेंट शेप आ जाता है, सर्वाइकल रीजन में को, देन सेक्रल रीजन में डिफरेंट शेप, वर्टिब्रा कॉलम को डिफरेंट शेप आ जाता है. So due to different shape, so it is called irregular bone. Sesamoid bone only bone is a patella. Patella एक only bone है in our body, that is called sesamoid bone. And now classification of joints. 3 types of joints: immovable joints, slightly movable joints, and freely movable joints. Immovable joints, so immovable joints not move in our position, that is called immovable joints, also known as fibrous joint, because bones are connected with fibrous tissue. Fibrous tissue से connected रहती है bones, इसलिए ये immovable joints कहते हैं. उन्हें also known as fibrous joints. Example like a skull is a fibrous joints. Slightly movable joints, our vertebra column, our ribs, that is a slightly movable joints, because in this joints separate by some substance and slightly movable possible, because in the between that gap some disc and some cartilage presents here, so that's help to move slightly, so that is helpful like a slightly movable. So example is our vertebra column, our ribs. Now इनमें तो टाइप्स हैं. सिम्फसिस जो फ्लैट डिस्क के साथ कनेक्ट रहती हैं वो सिम्फसिस कहलाती हैं, जो इंटरवर्टिब्रा कॉलम में. एंड आता है सिंक्रोडोलोसिस टेम्पररी फॉर्म ऑफ जॉइंट्स. कार्टिलेज चेंज हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? बोन्स में, adulthood में. These joints are found between the diaphysis and epiphysis of the long bones. Freely movable joints जो synovial joints होते हैं, जिनमें synovial fluid रहता है, that is called freely movable joints. इसमें कई टाइप्स के जॉइंट रहते हैं: ग्लाइडिंग जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, कॉन्टिलेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, सैडल जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट्स. तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ आता है? हमारा कार्पल मेटाकार्पल में. हिंज जॉइंट हमारे एल्बो और नीज में. कॉन्टिलेट जॉइंट्स इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन में. कॉन्टिलेट जॉइंट्स हमारे थंब में होता है अकेला.
कॉन्डिलेट जॉइंट्स हमारे रिस्ट में होता है ना, रिस्ट में कॉन्डिलेट जॉइंट्स। नाउ सैडल जॉइंट्स थंब में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स शोल्डर में एंड हिप में, पाइवेट जॉइंट्स हमारे नेक में। सो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम था। नाउ वी आर टॉकिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। Now we will be talking about our respiratory systems and cardiorespiratory systems. Respiratory system and circulatory system. Respiratory system and circulatory system. In respiratory systems, respiration system, we can say that bend by using oxygen and elimination of carbon dioxide by the help of through inhale and exhale process. So that is called our respiratory systems. Then oxygen come from environment by the help of inhalation and exhale carbon dioxide. In our body have a chemical reactions, so produce carbon dioxide. So that carbon dioxide by the help of blood reach to lungs, and lungs exhale our CO2 out through nose. So that is our respiratory systems. Respiratory systems work mainly oxygen, carbon dioxide, NH2. Mainly nose, main organ of respiratory systems. Nose, pharynx, larynx, trachea, bronchus, diaphragm and lungs. Nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, diaphragm and lungs. So that is a main organ system of our respiratory systems. In nose have our nasal cavity. In our nasal cavity have a different we can say that air. So protect, we can say that restrict our we can say that dust particles and enter the clean air from our nose. Pharynx is a junction with esophagus at the level of crocoid cartilage. Pharynx lies behind the nose के just behind रहता है pharynx. मस्कुलर ट्यूब है जो जंक्शन विद द ओसोफेगस. ओसोफेगस मीन्स जो आपकी खाने की नली है उस पे जंक्शन है उसके साथ. लेवल ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज है उसकी बराबर में. नाउ लैरिंग्स. आफ्टर फेरिंग्स के बाद क्या आता है लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या है? एयर पासेस है जो जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. फेरिंग्स जस्ट ऊपर रहता है, उसके नीचे क्या रहता है? लैरिंग्स. लैरिंग्स जो हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स. एंड कंपोज ऑफ कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ मेम्ब्रेन. एयर कॉजेस वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स. वोकल कॉर्ड भी रहता है. नाउ फिर आता है ट्रेकिया. लैरिंग्स से नीचे आपके लंग्स तक जाना. ट्रेकिया रहता है आपका 11.2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर रहता है 2.5 सेंटीमीटर. जो इट बिहाइंड ट्रेकिया जो रहता है वो एसोफेगस के जस्ट पीछे रहता है. एसोफेगस और लैरिंग्स के जस्ट पीछे रहता है. इट गेट डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, वन फ्रॉम ईच लंग्स. द वॉल ऑफ द ट्रेकी आर मेड ऑफ हाइलन कार्टिलेज. ऑन द माउथ ऑफ ट्रेकी देयर इज ए वॉल एंड कॉल्ड एपिग्लोटिस. जो एपिग्लोटिस रहता है वो फूड और हमारे एयर को पास करने में हेल्प करता है. तो ये किस पे रहता है? ट्रेकिया पे लगा रहता है. ये
ये कहाँ लगा रहता है, लैरिंक्स के पास लगा रहता है। फिर इसके बाद जो ट्रैकिया इसके बाद डिवाइड होता है तो वहाँ पर होती है ब्रांचेस खुल जाती है ट्रैकिया की लंग्स की तरफ, सो दैट इज कॉल्ड ब्रांचेस। ब्रांचेस खुल जाती हैं, और ब्रांचेस खुलने के बाद डिफरेंट ब्रांचेस खुलने के बाद जो ट्रैकिया फिर ऐसी ब्रांचेस खुल गई हैं, ऐसी ब्रांचेस खुल गई डिफरेंट टर्म्स में। तो ये क्या है, ये ईयर सेक्स है, सो दैट इज कॉल्ड ईयर सेक्स, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट ईयर सेक्स, ईयर सेक्स, ये ट्रैकिया देन ये ब्रांचेस। नाउ डायफ्राम क्या है, एक इंटरनल स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम है जो बॉटम रिब्स के इसके जस्ट बॉटम में रहता है। द डायफ्राम सेपरेट थोरेसिक कैविटी, लंग्स, हार्ट एंड रिब्स फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी एंड परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन रेस्पिरेशन में परफॉर्म करता है। नाउ आता है लास्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लंग्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आवर बॉडी, लंग्स आर वाइटल ऑर्गन सिस्टम्स, लंग्स आर कॉन्सेव एंड अपेक्स अबव रहता है, जो उनका अपेक्स रहता है, बेस जो रहता है वो नीचे रहता है, अपेक्स जो रहता है वो ऊपर रहता है। और जो लेफ्ट लंग्स जो रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है ड्यू टू क्योंकि हार्ट प्रेजेंट रहता है लेफ्ट साइड में, इसलिए इसमें लेफ्ट वाले में 2 लोब्स रहते हैं, यहाँ पर राइट वाले में 3 लोब्स रहते हैं। 3 लोब्स मीन्स ऐसे 3 ब्रांचेस रहती हैं, ऐसे 3 ब्रांचेस, यहाँ पर सिर्फ 2 ही ब्रांचेस रहती हैं। तो थोड़ा सी कैविटी ऑन डायफ्राम, द लंग्स आर द डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय फिशर्स, द लेफ्ट लंग्स हैज 2 lobes, the right lungs has 3 lobes. Types of respiration, external respiration and internal respiration. In external respiration occurs in our when inhale air, trachea, bronchs के थ्रू जब lungs में से आती है एयर पल्मोनरी कैपिलरीज में, सो वहाँ पर जो एल्वली होती है, एयर सेक्स जो होती हैं, सो वो वहाँ पर मेम्ब्रेन के थ्रू जो आरबीसी रहता है ब्लड कैपिलरीज में, तो वहाँ पर एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का, सो लंग्स में जो रहता है, सो दैट द ट्रांसफ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, internal respiration is consist of the passage of O2 from blood into tissue fluid and from the tissue fluid into the tissue cells and passage of CO2 from the cells into tissue fluid. सो जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें वापस क्या हो जाता है, CO2 वापस मतलब लंग्स की तरफ आ जाता है और O2 का डिफ्यूजन हो जाता है, सो O2 उसमें डिजोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, जो टिश्यू और सेल में होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। नाउ इट इज क्लियर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन लंग्स एंड इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन सेल्स। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है, लंग्स में होती है, और इंटरनल रेस्पिरेशन आपकी सेल्स में होती है। नाउ mechanism on basis of two process, inhalation and exhalation. When you inhale, your costal muscles contract, your chest can be contract, sternum and ribs outward, मतलब चेस्ट की ऊपर जाती है, साइडवर्ड फ्रंटवर्ड हो जाती है। नाउ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ऊपर की ओर बढ़ जाता है, मूव डाउनवर्ड। जब इनहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है, मूव डाउनवर्ड एंड डेप्थ द चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। द कैविटी ऑफ thoracic region, thoracic increase, the pressure between the pleural surface is reduced, तो लंग एक्सपेंड विद फुल ऑफ thoracic cavity। जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर एयर प्रेशर बाहर कम हो जाता है, फिर हम एक्सहेल करते हैं। अब एक्सपिरेशन में भी क्या होता है, एक्सपिरेशन में जैसे होता है तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, इधर जब इनहेल कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट होती है, यहाँ पर रेस्ट हो जाती है, मुझे रिब्स और स्टर्नम डाउनवर्ड हो जाती है, जो डायफ्राम है वो अपवर्ड भाग जाता है। इनहेल करते हैं डायफ्राम नीचे जाता है, एक्सहेल करते हैं डायफ्राम ऊपर जाता है अपनी पोजीशन पे। द डेप्थ ऑफ चेस्ट डिमिनिशेस एंड कैपेसिटी ऑफ thoracic decrease, the pressure increase and forces of air to go out the lungs. Structure and function of circulatory system.
will discuss about circulatory systems. In circulatory system, that is respiration systems. In circulatory systems is very important system and connected to each other. Respiratory system and circulatory system connected to each other very well. Connected to each other very well. Now, suppose here is lungs. At center, have we heard fourth chamber, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Then इनफीरियर जो इम्प्योर ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा. इम्प्योर ब्लड इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से यहाँ जाएगा. फिर यहाँ से क्या पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये लंग्स में जाएगा ब्लड. लंग्स में जाने की जगह वहाँ पर क्या होगा? प्योर होगा. फिर प्योर ब्लड लंग्स से किस में जाएगा? लेफ्ट आर्टरी में. लेफ्ट आर्टरी किससे? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू. यहाँ से ये लेफ्ट आर्टरी में आएगा. यहाँ से ये एरोटा के थ्रू, एरोटा के थ्रू ये होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एरोटा के थ्रू. सो यहाँ पर ये इस तरीके से लंग्स और हार्ट काम करते हैं ब्लड सर्कुलेशन का. मोस्ट ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम वर्क एज ए ट्रांसपोर्ट वर्क करता है. क्योंकि जैसे कोई भी न्यूट्रिशंस ले जाना, एयर का ट्रांसपोर्ट करना, फूड का ट्रांसपोर्ट करना, वो किसके थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हो रहा है. अब इसमें फोर चीज़ें मेन है: हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. क्या क्या मेन है? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. चार चीज़ें बहुत मेन है: हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. सो हार्ट की जो लोकेशन है वो थोरैक्स रीजन है, उसके लंग्स के बीच में होती है. उसका जो साइज है वो कितना होता है? 300 ग्राम का होता है ना. और ये अप्रोच कहाँ पाई जाती है? लंग्स वो हार्ट कहाँ पाया जाता है? 5th और 6th रिब्स के आसपास पाया जाता है. और ये लेफ्ट साइड पाया जाता है 8 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम द मीडियल लाइन. मीडियल लाइन ये है, इससे जस्ट 8 सेंटीमीटर साइड में पाया जाएगा. तो ये हमारा हार्ट था. अब हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट में क्या होता है? ये लेफ्ट साइड डिवाइड होता है सेप्टम के. सेप्टम है तो 2 भागों में डिवाइड होता है. इसमें 4 चैम्बर होते हैं. 4 चैम्बर होते हैं जिसमें हम बोलते हैं राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ऐसे ही इनके बीच में यहाँ पर क्या होते हैं? वॉल्स रहते हैं. यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, एरोटिक वॉल, पल्मोनरी वॉल, ये ऐसे वॉल्स रहते हैं ताकि ब्लड वापस फ्लो ना हो सके, इस पर्पज से. नाउ फंक्शन ऑफ हार्ट. अब नाउ हार्ट के फंक्शन डिफरेंट हैं. 2 टाइप्स के सर्कुलेशन चलते हैं: सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन. जो सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में चल रहा है, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट और लंग्स, सो दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. एंड दैट सर्कुलेशन बिटवीन द डायरेक्ट हार्ट और बॉडी, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. और जो हार्ट में ही सेल्फ, जो अपना हार्ट में ही सेल्फ जो सर्कुलेशन चलता है, सो दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन. दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन. एंड नाउ हियर 2 पॉइंट आल्सो: इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेबिलिटी होना किसी पोजिशन पर. सो इक्विलिब्रियम, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज काउंटर बैलेंस इक्वल टू अपोजिट फोर्स. मीन्स अपोजिट फोर्स से काउंटर बैलेंस होकर वहाँ पर बैलेंस होना. जिसमें भी क्या है? स्टैटिक पोजीशन पे है और डायनेमिक पोजीशन पे है. तो डायनेमिक में जब मूवमेंट में, स्टैटिक में स्टेशनरी पे है. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर एक इंडिविजुअल की यहाँ होल मास कंसंट्रेटेड ऑन 1 पॉइंट.
So that point is called center of gravity. That point is called center of gravity. Center of gravity मेल की ऑलवेज नाभि के जस्ट नीचे रहती है, नाभि के जस्ट नीचे, और फीमेल की और थोड़ी सी डाउन रहती है. तो ये क्या है, ये है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसमें हमारे पूरे होल बॉडी मास कंसंट्रेट रहता है. नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे.